Hello students, this is physics session for class 10th and today I am here to discuss about circuit diagrams. Before we start, what is circuit diagram? First of all, we will discuss a numerical question. Actually, total charge on a body Q, this is equal to NE, okay? Q equal to NE, where N is number of electrons and E is charge on an electron. Okay. So by using this relation, we can find out total charge on a body. The question is, how many electrons constitute one coulomb of charge? This is question. In this question, total charge is given Q, this is 1 coulomb, and charge on one electron, it is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. So you have to find out how many electrons. It means number of electrons. Since Q equal to NE, therefore number of electron N equal to Q by E, where Q means total charge and it is 1 coulomb, and charge on one electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We will take here mod value of charge of one electron. You can write this 10 into 10 to the power 19 upon 16. Okay. Or you can write 100 upon 16 into 10 to the power 18. Now solve this. 4 4 ja 16, now 25. This is 6.25 into 10 to the power 18. So in this way you can find out
how many electrons constitute 1 coulomb of charge. टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला होगा. N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस क्वेश्चन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलॉम चार्ज मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलॉम के इक्वल होगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पता करना है. टोटल चार्ज यहाँ पर है 1 कूलॉम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. तो हम रिलेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू NE, इट मीन्स N इक्वल टू Q बाई E. और इस रिलेशन में या इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे. Q मीन्स टोटल चार्ज और ये है 1 कूलॉम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. यहाँ पर हम मॉड वैल्यू लेंगे. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, एंड दिस इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज. इससे कम चार्ज किसी भी पार्टिकल पर पॉसिबल नहीं है. तो जो टोटल चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल होगा. ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now we will discuss some electrical components and their symbol, because in circuit diagram cell, battery, other electrical components are used by their symbol. Okay, like cell, its symbol is plus and minus. This is symbol of cell. And then battery. Actually battery is combination of 2 or more cells. So suppose we want to make a battery of 4 cells. So we will draw 8 vertical lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is plus, it is minus. This is battery of 4 cells. Okay, and now ammeter. In the circle we write A. Ammeter has 2 terminals, positive and negative.
this is symbol of ammeter. Now likewise voltmeter, in the circle we write V. It has positive and negative terminal. Now bulb, you can write like this. This is symbol of bulb. And then wire joint, it is this is wire joint, and plug key open, its symbol is this is plug key open. Now plug key closed. This is we will put a dot, and then resistance, it is resistance, and variable resistance, its symbol is this is variable resistance. Another device is rheostat. It is also used as variable resistance, and its symbol is like this. This is rheostat. So the important electrical components: cell, battery, ammeter, voltmeter, bulb, wire joint, plug key open, plug key closed, resistance, variable resistance, and rheostat. सर्किट डायग्राम में ये सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जनरली यूज़ होते हैं। जैसे अगर हमें एक सेल बनाना है तो इसके लिए हम दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली लाइन जो कि लॉन्गर लाइन होगी, लार्ज होगी, और दूसरी वर्टिकल लाइन उसके कंपेयर में छोटी लाइन होगी। तो जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर आपको बैटरी ड्रॉ करना है, सपोज 4 सेल की बैटरी बनाना है, अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स, तो एक सेल में कितनी लाइन ड्रॉ किया? 2 लाइन। तो अब आपको 4 सेल में 8 लाइन्स ड्रॉ करना है, 8 वर्टिकल लाइन्स। ओके,
इसमें हमने सबसे पहले बड़ी लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद छोटी लाइन। तो इस तरीके से आपको 8 लाइन ड्रॉ करना है और 8 लाइन ड्रॉ करने के बाद जो सबसे बाहर वाली लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, बीच में क्या करना है, जो छोटी लाइन आपने ड्रॉ किया है इससे बड़ी वाली लाइन को कनेक्ट कर दोगे इस तरह से। तो दिस इज सिंबल फॉर अ बैटरी ऑफ 4 सेल। एमीटर, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर का सिंबल जैसा कि आप देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। एमीटर हैज़ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सर्कल के अंदर ए लिखेंगे और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक उसी तरह वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर is a device which measures potential difference across the end of conductor। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होगा और इसका सिंबल होगा, एक सर्कल के अंदर V लिखोगे और प्लस एंड माइनस टर्मिनल। एमीटर और वोल्ट मीटर इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें दिखाना है। बल्ब, बल्ब का सिंबल ये होगा। प्लग की ओपन, प्लग की ओपन बनाना है तो हम एक ब्रैकेट बना देंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ब्रैकेट, और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन से दोनों तरफ कनेक्ट कर देंगे। दिस इज प्लग की ओपन। प्लग की क्लोज्ड दिखाने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर एक डॉट रख देंगे तो ये प्लग की क्लोज्ड का सिंबल हो जाएगा। रेसिस्टेंस जो कि सर्किट में वर्क करता है या कनेक्ट किया जाता है, इस तरह दिखाएंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह दिखा के ऐसे एरो बना दें। एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है सर्किट में? वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करके वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों चेंज किया जा सकता है जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। इसी तरह से रियोस्टैट, रियोस्टैट भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही काम करता है। रियोस्टैट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज। तो जैसे कि रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट, प्लग की, ये सभी सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में। नाउ you can take a screenshot of it. Now here is a question related to circuit diagram. Draw a circuit diagram
containing a bulb and a bulb, a resistor, plug key, and ammeter, all connected in series. Connect a voltmeter across the resistor. So, how can we draw this circuit diagram? एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको बनाना है एक बल्ब, एक रेजिस्टर, प्लग की, एमीटर और ये सभी सीरीज में कनेक्ट है. कनेक्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस द रेजिस्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है. सो लेट अस सी. Bulb and then resistance or resistor, ammeter, battery. Suppose it is battery off in the question. Diagram containing a bulb, resistor, plug key, battery. Suppose it is battery of 3 cell. We have to draw 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Like this. This is battery and then plug key. Now connect ammeter. Actually this is bulb and this is resistor or resistance. Okay, this is resistance R. So we have to connect voltmeter. Suppose these are the points X, Y. Okay, like this. As you know, ammeter and voltmeter have positive and negative terminals. So we put here positive and then here negative. Okay, and then
this is positive, this is negative. In this way, we can draw circuit diagram for this question, and if we put dot, it means the circuit is closed now, and the direction, you can also represent the direction of current in the circuit like this. Actually, as you know, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम लोग दिखा देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया? बल्ब और रेजिस्टेंस इन दोनों को सीरीज में रखा. उसके बाद एमीटर भी सीरीज में है और बैटरी भी सीरीज में है. ये बैटरी जो बनी हुई है, दिस इज थ्री सेल्स की बैटरी है, क्योंकि 6 वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है. सो दिस इज द schematic circuit diagram for this question. This is actually circuit diagram. Circuit diagram. Okay. Now you can take a screenshot of it. Now, today's class is over here, and we will discuss about Ohm's law in the next class. Thank you, students.